Hi Mahesh, hi Dishan. नितेश, इसका टाइटल क्या रखा हुआ है आज का? We have kept the title as, I'll just tell you, Busting Myths About Sales. ओके। And also understand why sales is not just about targets, but it's a vital life skill. राइट, ओके। So mostly, I'll share an experience with you, Mukesh. This happened, I think, about 6, 8 months back, and we were राइट, engaging with a batch from one of the organizations, which was, I think, a mix of women from various kinds of disabilities, and राइट। we had great opportunities in the sales space, but they immediately refused to do anything which was remotely related to sales. And most people came up with the objection that sales is not for us. We don't want to do sales. So maybe it is culturally how people comprehend sales, traditionally how sales has been interpreted or positioned, which I feel today, when you look at any job opportunity, I think it is such a vital life skill to have, such that you are able to at least sell yourself in an interview, or to be able to then even do any job which is given to you in a better manner. So I राइट, think that is such an important thing. And that's the reason why I thought it is important to bust these myths. ओके, राइट। Nitesh, you tell me when the sign language interpreter is there, I'll put her on spotlight. Okay, ma'am. Yeah.
So I think, Mukesh, people will keep joining in the next 5 minutes. Yeah, I great. yeah, quickly introduce everybody. So we have people joining in not only from Sarathi, but otherwise also from the community. And it's such a pleasure to have you here with us. So, Mukesh, I know you since last 6 years, and I don't think when it comes to sales, जितना simple आपने sales का concept बनाया, not only for people in Sarathi, but also generally for people to understand. I think that is the reason why I reached out to you. बहुत सारे myths हैं जो sales से related लोगों को डराते हैं. People are scared, people are worried about sales as a concept. But at least I personally believe that sales is a very, very important life skill. And I thought I will invite you over to talk about it and also perhaps engage with people in the audience today to help them break their misconceptions, whatever the case would be. Thank you so much, Mukesh. Over to you. No, thank you. Thank you so much, Richa. It's been a pleasure to come back and speak to this bright group of youngsters, who want to know more about sales. So, can we kick it off, or are we waiting for something? No, we should. Nitesh, can you please check on the sign language interpreter? Yes, ma'am. I've checked with her, ma'am. She said that she'll join. She's just joining. She's Okay, so joining? we're about 19, 20 participants right now. Is that We fine? Yes, she's are joined. about 23 right now. Yeah. Yeah, that's counting 3 of us. Yeah. So, so we should kick it off. Absolutely, please. Okay. हाँ जी, नमस्ते. हाँ, मैडम ने मेरा नाम बताया क्या? मुकेश. और आप लोग पता नहीं मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, पर मेरे सिर पे ना बहुत सफेद बाल है. एक्चुअली मेरे सिर पे एक बाल भी नहीं है, पर सफेद हैं. ठीक है. और मैंने अपनी सारी जिंदगी सेल्स की लाइन में, मतलब जो है, आई स्पेंट माय होल लाइफ इन सेल्स. हर किस्म के अलग अलग प्रोडक्ट को मैंने बेचा. तो मैं आज आपसे 2-4 टिप्स शेयर करना चाहूंगा कि ये जो धंधा है, ये जो लाइन है सेल्स की, इसमें अच्छी है, बुरी है, आपके लायक है, नहीं है. देखिए, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी मतलब सेल्स में मतलब गुजार दी. मेरी उम्र क्या थोड़े 70 साल से कुछ 2-4 साल उसके आगे ही है. समझ गए? तो इसका मतलब क्या कि आई एम व्हाट spent over close to 50 years in selling. ठीक है. देखिए, सेल्स एक ऐसी लाइन है जो हमको मतलब जो है, अब ये मत सोचिए कि कुछ हमने माल बेचना है, वो उसके लिए सेल्स की जरूरत है. सेल्स तो हर जिंदगी की पहलू में सेल्स की जरूरत पड़ती है. चाहे आप का भाई हो, आपका बेटा हो, आपको भी तो अपना आइडिया उनको बेचना पड़ता है ना, कि क्या, कि जो मैं सोच रहा हूं कि आप मेरे सोच से आप अग्री करें. तो अग्री करने के लिए क्या, हमको मतलब जो है एक किस्म से सेल करनी पड़ती है. अपना क्या, किस चीज की सेल करनी? अपनी आइडिया की सेल करनी. तो आपकी आइडिया मतलब जो है से वो आप उनको मतलब कन्विंस करें, और अगर आप कन्विंस करेंगे तो आपका फायदा हो सकता है, नहीं? तो इसलिए सेल्स जो है, आप ये मत सोचिए कि सेल्स जो है खाली कोई माल बेचने का मामला है. हाँ, जरूर माल भी बिकता है. और सेल्स एक ऐसी लाइन है जिसमें अगर आपने इसकी पकड़ ठीक से मतलब समझ ली, तो आप अपना क्या कहते हैं, सैलरी का चेक ना अपने हाथ से लिख सकते हैं. आपको किसी से पूछनी नहीं पड़ती. हाँ, ज्यादा सेल करो, ज्यादा कमा.
तो आपको मतलब एक ऐसी मतलब मौका कहाँ मिलता है कि क्या आप जितने मर्जी तनख्वाह अपनी मतलब चाहते हैं वो आप खुद अपने हाथ से ही लिख सकते हैं कि मेरे को इतने पैसे मेरे को मिलने चाहिए। बस सेल आपको आनी चाहिए, और अगर सेल की आपको पकड़ आ गई तो भैया आप बहुत कामयाब आदमी हो सकते हैं ना। So it is actually a very, very, good line, and it is not only good, it can help you to earn lots and lots of money. Okay? हाँ? आप लोग सब पैसा कमाना चाहते हैं ना? हाँ, जरा हैंड्स अप करिए। आप मतलब जो है चैट बॉक्स में जरा अपना हाथ ऊपर करके दिखाइए कि हाँ भैया मुझे पैसा चाहिए। ऐसा है इस कमरे में जिसको पैसा नहीं चाहिए? हाँ, अगर आपको पैसा चाहिए तो अपना हैंड्स मतलब शो ऑफ हैंड्स। ओके, आई कैन सी सम हैंड्स कमिंग अप। क्या? हाँ, अच्छा, काफी लोग ने हाथ उठा लिया। अभी कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया भैया। हाँ, हाथ तो उठाओ। पैसे चाहिए तो हाथ तो उठाना पड़ेगा, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। क्यों भाई? हाँ जी, अंसारी मोहम्मद जी, आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए? हाथ तो उठाओ। हाँ, ओके। हाँ, बसवराज पाटिल, हाथ उठाओ। हाँ। अच्छा, चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब हाथ उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, दैट्स राइट। बट क्या है कि इसको सेल्स में एक परेशानी है। हाँ, परेशानी क्या है कि सब लोग सोचते हैं कि ये सेलू है ना, तो ये हमको बुद्धू बनाएगा, है ना। सेल में कहते हैं ये हमको टोपी बनाएगा, मतलब टोपी बनाएगा। टोपी क्या? हमको मतलब जो है बेवकूफ बनाएगा कि भैया भगवान जाने हमको क्या चेपते। नहीं, हाँ, कोई उल्टी सीधी चीज मतलब है, ये सेल वालों से डरना चाहिए। ये सब जो है ना उल्टी सीधी चीजें हमको मतलब जो है नहीं भी चाहिए, वो हमको भेज दें। हाँ, जैसे मेरे सिर के बाल के में पे बाल नहीं है, हो सकता है कोई मुझे कंघी भेज दे, है ना, ऐसा मामला है। ठीक है ना। तो अगर सेल्स में आपको कामयाबी चाहिए, सबसे पहली चीज क्या? आदमी किसको देखता है? वो नहीं देखता कि आपका प्रोडक्ट क्या देखता है, वो किसके देखता है? आपकी आवाज और आपकी शक्ल को देखता है कि भैया ये आदमी भरोसे लायक है या नहीं है। हाँ? हो सकता है कि आप मतलब के पास बहुत अच्छी चीज बेचने लायक, पर अगर आपके शक्ल से ऐसा उनको महसूस हुआ, नहीं नहीं ये तो बहुत चालू आदमी है, हाँ, इसको मतलब है डर के संभल के इसे चलना चाहिए, तब आप सेल में कामयाब नहीं होंगे। तो पहली चीज क्या है कि आपको सेल्स में कामयाबी लेनी है, तो फिर सबसे पहले आपको भरोसा अगले का से जिताना पड़ेगा। अब भरोसा कैसे जिताए? अच्छा, चलो मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि मेरे हाथ में 5 तोला सोना है। आजकल सोना का दाम बहुत चढ़ गया है ना। 5 तोला सोना है, और मैं आपको ये 5 तोला सोना आपको देता हूं, और मैं आपको कहता हूं चलो ये 5 तोला सोना आप आधे भाव पे रोड पे जाके बेचो, है ना। आसान है ना। क्यों भाई, बेच लोगे? हाँ, अभी भैया बेच लोगे? क्यों अंशुल, लग रहा बेच लोगे नहीं बेच लोगे? आधे भाव पे यार, सोना मतलब है, सोना तो खरीद चीज होती है। आधे भाव पे बेच लो। हाँ, चैट बॉक्स में लिखो यस नो। हाँ जी, बस यस कह रहे हैं, बेच लोगे आधे भाव पे? हाँ भी, चैट में लिखो। और क्या सर कहें? 50-50 चांस है। हाँ, क्या 50-50 चांस? चांस है 50-50? अरे आधे भाव पे यार, अब और क्या चाह रहे हो? और मतलब क्या, सर। एक और क्या बोल जरूरत दूं? से ज्यादा कीमती चीज अगर सड़क पे मिल रही हो, वो भी आधे भाव में, तो विश्वास थोड़ी करेंगे लोग बात। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कई लोग यस कर रहे हैं, कई लोग नए भी कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, चलो मैं पूछ लेता हूँ।
हाँ रिंकेश तुमने नो सर लिखा है, क्यों भाई तुमने नो सर क्यों लिखा है? कि आधे भाव पे तुमको सोना बेचना है भैया, तो सोना आधे भाव में सोना बेचने की क्या दिक्कत? हाँ रिंकेश, why can't you sell it at half the price? What's the problem? Rinkes, right? Why? Can you tell me? What's the Rinkesh? problem? हाँ हाँ रिंकेश बोलो, बताएं बताएं। अच्छा चलो मैं ओपन करता हूं। जो लोग कहने की नहीं बेच पाऊंगा, हैं, तो क्यों भैया आधे भाव में मैं कह रहा हूं सोना बेचना, तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? कोई तो बताए। सर नुकसान पे क्यों बेचे? हाँ क्या कह रही है? नुकसान पे क्यों बेचे? फायदे पे नहीं बेचेंगे नहीं ना। वो मैं, मेरे को पैसे की गर्ज जरूरत है, तो भैया मैं कह रहा हूं कि आधे भाव में बेच दो, है ना। मैंने बहुत बहुत मतलब इमीडिएट नीड है, तो जाओ ये सोना ले जाओ आधे भाव पे बेच दो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मतलब वो मतलब क्या मोटिव क्या है आधे भाव पे, उसको मतलब साइड में रखो। मैं ये कह रहा हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे आधे भाव पे सोना अगर बेचोगे। चलो आधे भाव पे सोना, आधे भाव पे सोना, आधे भाव पे सोना ले लो। हाँ क्या कर लोगी या नहीं कर लोगी बोलो? कोई तो पता बोले नहीं सर, मेरी भरोसा मर्जी। नहीं है। हाँ नहीं बेचोगे? भरोसा नहीं है। लोग बिलीव भरोसा नहीं है? क्यों भरोसा क्यों नहीं है? अब तो खरा सोना बेच रहे हो। हाँ आदमी भरोसा क्यों नहीं करेगा आप? हाँ अच्छा आप सही बोल रहे हो। क्या है आदमी क्यों नहीं लेगा? क्योंकि क्या अगला क्या सोचेगा, अरे पता नहीं यार ये सोना थोड़ी है, ये पीतल है, पीतल के ऊपर उसने सोने का पानी चढ़ा के बेच रहा होगा। और क्या पता चोरी का मामला हो। हाँ इससे पकड़ लेंगे तो मतलब मैं फंस जाऊंगा। आधे भाव पे कोई सोना बेचता है क्या? बात क्या है कि उसको भरोसा नहीं है कि जो चीज आप बेचते हैं बेच रहे हैं, क्या आप पे भरोसा नहीं? अब भरोसा फिर कैसे जीता जाए? अब सोना बेच रहे हैं तो कैसे बेचेंगे? हाँ हाँ एक तरीका है कि आप कह सकते हैं नहीं नहीं सर ये मैं मतलब जो है ना, ये देखिए मैं तनिष्क में काम करता हूं, ये मेरा नाम है, ये देखिए ये मेरा कार्ड है, और ये तनिष्क का प्रोडक्ट है, ये देखिए तनिष्क से मैंने खरीदा था, ये देखिए ये बिल है ना। तो तनिष्क तो जाना पहचाना मतलब जो है ना, मतलब सोने बेचने की दुकान है ना। तो आपने मतलब जो है उसको आपने मतलब कर दिया कि भैया ये करिए। हाँ जी अच्छा और नहीं है तो ये लीजिए, ये कसौटी पे इसको रगड़ के देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, ये खरा सोना है। मतलब जो है ये अंदर पीतल नहीं है, चलो रगड़ के देख लीजिए। इन अदर वर्ड्स व्हाट, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप सब क्रेडिबल हो। शक्ल से अगर मैं देखूं आपको, हाँ यहाँ पे हमारे बीच में कोई ऐसा चोर चपट्टा तो नहीं नजर आ रहा है ना। आप लोग सब स्मार्ट हो, सच्चे हो ना, ईमानदार हो या नहीं हो? कोई मतलब बेईमान तो नहीं यहाँ पे बैठा? हाँ सब ईमानदार है ना? बोलो यस नो। यस सर। ओके मेरे को ये पूरा भरोसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेचने, जो भी चीज आप बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट को बाद में देखता है, सबसे पहले इंसान को देखता है। और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आधी मतलब जीत तो आपने कर ही ली, आधी चीज आपने जीत ली। तो डरना क्या भैया, तुम जब ईमानदार हो तो आप ईमानदारी से अगर किसी चीज को कोई भी मतलब परस्यू करता है, ऑटोमेटिकली सक्सेस आता है। समझ गए? हाँ तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि बेचने से पहले एक ये आपको एक में गुण होना चाहिए, और ये गुण आप सब में है, ईमानदारी का गुण। ठीक है? हाँ तो अगर तो आधी चीज तो आप ऐसी जीत गए। और क्या है कि हाँ इसमें सेल में एक एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हर एक आदमी नहीं है खड़ा मतलब वेट कर रहा आपकी मतलब चीज बेचने की, कि आप गए आपने चीज दिखा दी आप उसने तुरंत उठा लिया। ऐसा होता नहीं है। सेल्स में एक रूल है, वो समझ लो। रूल क्या है कि अगर मैंने 10 कस्टमर को अप्रोच करा, उसमें से एक हाँ करता है, 9 जो है वो
मुंडी हिला देते हैं कि नहीं जी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जब मुंडी हिलाते तो क्या है, हम लोग निराश हो जाते। मैंने कोशिश करी, देख उसने ना कर दी, फिर दूसरे से करी, ना कर दी, तीसरे से करी, ना करनी। पर आपको क्या करना है, गिनती करने लग जाओ कि मतलब जो है पहले ने ना करी, दूसरे ना करी, तीसरे ने, आठवें, नौवे ने, नौ। अब भैया 10वां वाला तो हाँ करेगा ही। ठीक है ना। अगर आप निराश हो गए तो आप हार गए। तो इसमें निराश होना नहीं चाहिए। बिकॉज कई मतलब लोग हैं जो मतलब बड़े कामयाब हो सकते थे, पर क्या, हाँ, पर क्योंकि कईयों ने ना कर दी, ना कर दी, तो क्या कहते हैं लोग, क्या सोचने लगते हैं कि नहीं देखो मेरे को ना कर। अरे भैया तुमको ना नहीं कर रहा है, ना हो सकती उसकी जरूरत नहीं थी, ता उसने ना कर दी। हो सकता है ये प्रोडक्ट मतलब जो है उसको महंगा था, प्रोडक्ट जो उसको मतलब उसकी यूटिलाइजेशन नहीं थी, उसकी डिमांड नहीं थी, तो उसने ना करी, तुमको थोड़ी ना कर दी उसने यार। तो जब भी ऐसी चीज होती है ना, रिजेक्शन हैंडल करना, आपको मतलब जो है मुस्कुरा के रिजेक्शन लेनी चाहिए। देखिए भैया, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ भाई, कौन था एल्बर्ट आइंस्टाइन? हाँ सही बोल रहे हैं, नेवर लूज होप एंड सेल्स, दैट इज राइट, हैंडलिंग रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल रिचा मैम सही बोल रही है। ये बताओ एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? हाँ, नाम सुना किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन? नहीं सुना? अरे भैया ऐसे मत करो, बड़े मशहूर आदमी थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? कौन था? यस तो है सोनिया, पर कौन था, कौन, वो तो बताओ। साइंटिस्ट था। हाँ, हाँ बिल्कुल बताया। और उन्होंने क्या इन्वेंशन क्या करी थी, किस चीज की मतलब उन्होंने मतलब इन्वेंशन करी? हाँ, सर एल्बर्ट उन्होंने आइंस्टाइन ने रिलेटिव किस चीज की? प्रिंसिपल दिया था। अरे नहीं नहीं बोलो, उसने इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन करी थी। जो बल्ब चलते हैं ना हमारे घर में, एक्चुअली आजकल तो मतलब जो है एलईडी आ गए, पर वो जो फिलामेंट बल्ब जो पहले आता था ना पुराने जमाने में, उसने बल्ब की मतलब जानकारी करी, और उसकी वजह से मतलब जो है बिजली से फिर वो आजकल सब लोग मतलब जो है रोशनी रात में हो जाती है। जी सर। हाँ? बहुत खास मतलब इन्वेंशन थी वो अपने जमाने में। पर किसी ने उससे पूछा, आइंस्टाइन बाबा, आप मतलब जो है इतने सालों से लगे हुए हैं इसको मतलब आविष्कार को खोजने में, आप कम से कम नहीं तो 10,000 दफा तो फेल हो चुके हैं, तो अब आप मतलब फिर क्यों कोशिश करने में लगे हुए हैं? फिर फेल हो जाओगे। और पता, हाँ, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वेल सेड सोनिया, दैट्स राइट। ओके, बट क्या, तो उन्होंने, किसी ने उनसे कहा कि भैया क्या है कि तुम 10,000 जगह फेल हो चुके हो, तो आप फिर तुम कोशिश में लगे हुए हो, अब क्या आपके मतलब आप क्यों उम्मीद करें कि आपकी फेल सक्सीड हो जाओगे? पता उसने जवाब क्या दिया? उसने जवाब ये दिया था, मुझे अब 10,000 वजह पता लग गई हैं कि किस वजह से मैं फेल हुआ हूं, और मेरी बुद्धि अब उतनी तेज हो गई। फेल हो गया तो अब मुझे मतलब वो 10,000, आप बेवकूफ थोड़ी था कि वो मतलब वही गलती बार बार थोड़ी करता था, उससे सीखता था। तो उसको जो सीख मिली वो इतना मतलब उसको सीख मिल गई कि अगली दफा उसने कोशिश करी, कामयाब हो गया। तो उसी तरह से कुछ मतलब जो है ना, आपका सेल्स का मामला भी है। हर सेल में अगर रिजेक्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ तो सीखने को मिलता है ना। बेवकूफ थोड़ी होता है कि वही वो बार बार वही गलती करता है। तो ये जो रिजेक्शन है ये आपको चीज सिखाता है। तो मैं आपसे सबसे मतलब जो है दूसरा आपको चीज बनाऊं, पहली चीज क्या बताई कि भरोसा, मतलब जो है आदमी पे भरोसा होता है। अगर आदमी मतलब पूरी तरह से विश्वास कर देता है तो सेल होने का अच्छा चांस है। दूसरी चीज क्या, कामयाब सेल्स आदमी को रहना चाहिए तो क्या, कि भैया भरोसा मतलब जो है, ये आपको मतलब जो है विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ओके, सो यू नीड टू नॉट feel dejected because of which you have not surrendered. Participants, your audio is not connected. Your video is off. The meeting is being recorded. Alert. Zoom meeting. Audio now unmuted. Alert. Mukesh, you have been muted. Sorry. Will you unmute yourself? Okay, Yeah, am I sorry. audible now? Yes, Okay, yes. yes. तो ये है दूसरी बात। तीसरी चीज
आपको जो सेल्स में मतलब आपको आपके फायदे में हो सकती है। देखिए, सेल्स आदमी खरीदता क्यों है, कोई चीज आदमी खरीदता क्यों है, ये समझना जरूरी है। खरीदता इसलिए क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत है मोस्टली, है ना। उसकी उसको चीज की जरूरत है और इसलिए वो खरीदता है। तो सेल्स का मतलब क्या है कि आप मदद कर रहे हैं अगले को कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। आप सेल करने नहीं आए हैं। आप क्यों वहां खड़े हैं? मैं इसलिए खड़ा हूं, मैं इसलिए खड़ी हूं कि मैं यहां पे इसलिए खड़ी हूं कि मैं अपने प्रोडक्ट द्वारा या जो भी चीज मैं बेच रहा हूं उसके द्वारा आपकी मदद करने आया हूं, आपकी सहायता करने आऊंगा, क्योंकि ये आपकी जरूरत की चीज है। और अगर ये आपकी जरूरत की चीज है तो आपकी मदद के लिए मैं खड़ा हूं। तो सेल मतलब ये नहीं होना कि चाहिए कि भैया जबरदस्ती माल चिपकाना। हमको क्या करना चाहिए? हमको उसकी मतलब जो है जरूरत को समझ लो, और अगर उसकी जरूरत को आपने समझ लिया तो फिर आप जो है उसकी मदद करने के लिए आप खड़े हैं, और आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस उसको उसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो रहा है इसलिए आप जो है उसकी दिखा दिया कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट उसकी मदद कर रहा है। तो भैया, हाँ, कौन ऐसा आदमी है जिसको आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, और कहता है नहीं नहीं मुझे मदद नहीं की। तो सेल क्या चीज है? ये सेल चीज ये नहीं है कि भैया मैं आपको कोई टोपी पहनाया आ रहा हूं, आपको बेवकूफ बनाने आया हूं कि भैया कोई चीज आपको चिपका के चले। ऐसी ऐसी सेल नहीं होती। सेल वो चीज होती है कि आप अगले की जरूरत समझें और जरूरत के हिसाब से आपने उसको मतलब जो है आपका प्रोडक्ट या सर्विस दिखाया कि कैसे उसकी जरूरत पूरी हो रही है। अगर आपने ये स्टैब्लिश कर दिया तो सेल तो डन चीज है, चक्कर ही नहीं। क्यों, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, मैं बोलता जा रहा हूं। हाँ भैया, यस सर, यस हाँ समझ आई ना। हाँ, जी। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सेल तब करी जाए जब, अब अलग अलग आदमी की अलग अलग नीड होती है, सबकी नीड बराबर थोड़ी होती है ना। मान लीजिए कि मेरे को मतलब मोटर गाड़ी, तो एक आदमी की जरूरत क्या है कि नहीं भैया मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। क्यों? मेरे पास मेरा परिवार बहुत बड़ा है। दूसरे आदमी की नहीं भैया मुझे छोटी गाड़ी चाहिए। कोई कहता है नहीं नहीं यार मैं तो अच्छे पैसे खर्च करने को तैयार हूं, मैं ऑफ रोडिंग जाऊंगा, मेरे को मतलब एसयूवी चाहिए बड़ी सी। कोई कहता है अरे नहीं नहीं साहब उसमें गाड़ी में क्या होता है, चार पहिए होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चाहिए, तो भैया मेरे को इधर से उधर मतलब ऑफिस जाने के लिए मतलब गाड़ी चाहिए। अब हर एक आदमी की गलत मतलब गाड़ी की जरूरत तो एक नहीं है ना। कोई बड़ी गाड़ी खोज रहा है, कोई एसयूवी खोज रहा है, कोई कहता है कि ये भैया इतनी मेरा बजट नहीं है, कोई कहता है मेरे को माइलेज चाहिए, है ना। तो हर एक आदमी की अलग अलग जरूरत होती है ना। अब कार का सेलमैन करता क्या है फिर? ये थोड़ी है कि कार खड़ी है और उसको मतलब कस्टमर आया है भाई कार खरीदने हैं, तो जो कार खड़ी उसको बस ले लो सर ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, मतलब इसमें आपको ईएमआई मिल जाएगी, आप पेमेंट करिए, बताइए यहाँ पे साइन मारिए, हाँ, खरीद लेगा वो गाड़ी? नहीं खरीदे। आपको पहले उससे पूछना पड़ेगा ना कि सर आप खुद चलाते हो गाड़ी या कोई और चला के देगा? सर आपको लगभग मंथली रनिंग कितनी होती है? हाँ, पूछोगे ना क्या? सर आपके यहाँ मतलब जो है आपका परिवार कितना बड़ा है? सर कभी कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो? ये सब क्वेश्चन पूछता है ना कार का सेल्समैन, ये सारे क्वेश्चन पूछता है ना, क्योंकि उसके गाड़ी में मतलब उसके शोरूम में अलग अलग किस्म की गाड़ियां हैं। भाई वो गाड़ी दिखाएगा जो उसको मतलब पसंद है, पर पसंद कैसे है जब तक सवाल नहीं पूछेगा तब तक पसंद नहीं है, नहीं जान पाएगा ना। तो इसलिए अच्छा सेल्समैन कौन है? वो जो तरीके से
कस्टमर से बात करके उसकी जरूरत को समझ ली। अगर उसकी जरूरत समझ ली तो भैया फिर आपने उसकी जरूरत के हिसाब से चीज उसको दिखा दी तो सेल तो हो ही जानी है ना। अब बिना उसकी मतलब जरूरत जांचे आप उसके नाक में मतलब कुछ घुसड़ के दे दोगे और सेल तो नहीं होगी ना। तो इसलिए हर एक आदमी, दैट इज राइट रमेश, आप सही करें, ट्राई टू फाइंड आउट द रियल नीड। नो, वी देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड द नीड। अब जब तक तुम नीड नहीं समझोगे तो उसको आपको मतलब जो है, अगर आप मतलब जो है सुन नहीं पा रहे तो एक्शन देखिए, है ना। हाँ? देखिए केशवन आपको एक्शन द्वारा मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे आपको मतलब आपको आपको मैसेज आ जाएगा। हाँ, मैडम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप उनकी तरफ मतलब जरा देखिए, ठीक है ना। किसी वजह से अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो आप उनके एक्शन द्वारा समझने की कोशिश करिए। हाँ, मैडम बहुत तरीके से समझा रही है, ठीक है। हाँ, ओके, सो देयरफॉर क्या कह रहे हैं, अ गुड सेल्स पर्सन इज व्हाट, अ पर्सन who asks questions from the customer about his need। देखिए मैं साधारण एग्जांपल, मान लीजिए आपको संतरा खरीदना है, ऑरेंज, है ना। तो अब ऑरेंज का भी तो अलग अलग चीज होता है ना, कि क्या आपको जी ऑरेंज मतलब क्या जूस के लिए चाहिए तो बताइए, उसके लिए अलग किस्म का ऑरेंज है मेरे पास। आपको मतलब सीडलेस ऑरेंज चाहिए क्योंकि आपके बच्चे पे मतलब वो जब ऑरेंज खाता है तो वो बीज उसके मुंह में चला जाता है, मैं सीडलेस आपको ऑरेंज दे दूंगा। पर ऑरेंज भी तो अलग अलग किस्म की होती है ना। तो अगर आपके पास ये सारी वैरायटी हो ऑरेंज की, कि जी इसको आप लीजिए, ये मतलब जो है 3 ऑरेंज को निचोड़ेंगे पूरा ग्लास भर के आपको जूस मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको मतलब जो है थोड़ा फाइबर वाला चाहिए, मीठा चाहिए तो ये खाइए, अगर विटामिन सी चाहिए तो थोड़ा सा वो खट्टा वाला ऑरेंज ले लीजिए। अब मतलब देखिए आप जो है, मान लीजिए कि आप, चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप जूते की दुकान में जाए तो जूते का सेल्समैन भी आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। क्या पूछता है कि भैया आपका पहले तो ये बताइए कि जी आपका साइज क्या है, जूते का साइज क्या है, पहले तो पूछता है ना। ये थोड़ी क्या ये ले लीजिए जूता, इसमें पार्ट बता देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। पर जूता फिट तो आना चाहिए ना। फिर वो पूछेगा जी आपको किस पर्पस के लिए जूता चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए या ऑफिस के लिए चाहिए या आपको मतलब जो है पैदल मतलब वॉकिंग के लिए चाहिए। हाँ, अलग अलग किस्म का जूता आता है ना। वो आपको इतना क्वेश्चन तो पूछता है ना। हाँ, तो एक साधारण सी चीज जैसे जूते जैसी चीज में मतलब जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, चाय के साथ कुछ खाना है क्या? मीटिंग चल रही है ना। आपको फिर मतलब जो है आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको मतलब जो है स्ट्रैप वाला जूता चाहिए, आपके पास में मतलब जो है यहाँ पे मतलब जो है बूट चाहिए, अलग चप्पल चाहिए। आप भैया तो जूते के कई चॉइसेस होती है ना दुकान में। अब अगर आप पूछेंगे नहीं कि अच्छा जूता चाहिए, लीजिए ये लिए आपके सामने जूता फेंक दिया उसने, लीजिए ये जूता पहन लीजिए, नहीं चलेगा ना। तो इसमें ये दूसरी गुण होना जरूरी है। यू नीड टू बी सक्सेसफुल। हाँ, वेल सेड। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। The only way you can make a successful sale is when you ask questions from the customer, because then only you will know what the need is। बहुत बढ़िया, आपके लिए मैं हाँ ताली बजा रहा हूँ, वेल डन, सही लिखा है ना, दैट्स राइट। हाँ, तो क्या है कि घबराना नहीं चाहिए। आप भैया घबराने की क्या बात है, आप तो उसकी मदद करने के लिए बैठे हैं ना। अरे भैया मदद करने के लिए तेरे बैठे हैं तो घबराने की क्या जरूरत है, घबराने की जरूरत ही नहीं। आप मतलब बोल्डली उससे पूछे जी आपकी जरूरत क्या है जी, मैं आपसे 2-4 सवाल, आपको इतराज ना हो तो 2-4 सवाल पूछ लो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। देखिए अगर तो आप खुद मतलब डरे डरे धीमी धीमी आवाज में बात करेंगे, वो क्या सोचेगा, अरे ये तो खुद ही मतलब इसको नहीं पता ये क्या बेच रहा है। पर अगर आप कॉन्फिडेंस से लेके जाएंगे तरीके से, थोड़ी आवाज में दम होनी चाहिए, है ना, तो अगला भी सोचेगा नहीं भैया भैया ये तो मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये तो तब सही चीज बता रहा है। पर अगर आप मतलब थोड़ा सा मुंह करके बताएंगे तो वो कहेगा अरे भैया ये खुद ही घबराया हुआ, मुझे क्या सेल कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। देखिए सक्सेस होने का एक और ये राज जो है मैं आपको बता दूं,
आपको कुछ पता हो ना पता हो, अगर आपके कॉन्फिडेंस है ना, तो खुद अपने आप मतलब आप मतलब कामयाब हो जाओ। जिंदगी में जो भी मर्जी करो, सेल में करो या जो भी आपको करना है, तो कॉन्फिडेंस आपका मतलब जबरदस्त होना चाहिए। अगर आप घबराते घबराते बात करेंगे तो फिर भैया, हाँ, आधी चीज तो वहीं पे आप मतलब पिट जाते हैं, समझ गए? हाँ, सो कॉन्फिडेंस शुड बी इन योर, क्या कहते हैं, इन योर वॉइस, इट शुड बी इन समथिंग कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या? अरे भैया छाती खोल के बात का बैठो, क्या हो जाएगा, डरना नहीं है। अबे मैं तो तेरे लिए बैठा हूं, तेरी मदद करने के लिए। आवाज भी ऐसी बुलंद होनी चाहिए, हाँ, ठीक है ना? तो कभी कभी मैं देखता हूं ना कि आप लोग यंग पीपल हो ना, I think Mukesh's camera has frozen. तो किसी वजह से यार आपकी मतलब जो है ना लियो, कौन सा आसमान फट जाएगा, किसी और को भेज देंगे। तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। Mukesh, we have a question here. Abhi Hmm. is asking, does the same strategy apply to B2B sales? हाँ अच्छा, तो किसी ने ये लिखा बी टू बी। पहले ये बता, सबको पता है बी टू बी का मतलब क्या है? हाँ हाँ जी, व्हाट इज बी टू बी? हाथ उठाओ। हाँ जी, व्हाट इज बी टू बी? ओके, वेल सेड, बिजनेस टू बिजनेस। सी, एक तो होता है बी टू सी और एक होता है बी टू बी। बी टू सी क्या? जब बिजनेस बेचता है कस्टमर को डायरेक्ट। बी टू बी क्या? मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण देता हूं बी टू बी का। अगर मैं कार बेच रहा हूं, तो कार क्या बेच रहा हूं? कस्टमर को बेच रहा हूं, तो ये बी टू सी हो गया। पर मान लीजिए कि मैं कार का पुर्जा बनाता हूं। अब पुर्जा तो मैं कस्टमर को बेचता नहीं हूं, पुर्जा मैं बेचता हूं किसको? वो उस मतलब कार मैन्युफैक्चरर को बेचता हूं, वो मेरे से पुर्जा लेके टायर बेच रहा हूं। तो टायर में मतलब जो है, हो सकता है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर को भी, पर मतलब अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट में या किसी को बेच रहा हूं, तो मैं मतलब गाड़ी मैन्युफैक्चरर के पास दे दूंगा कि भैया ये लीजिए सर, आपकी गाड़ी के लिए ये टायर मतलब हमसे खरीदा करें। तो ये तो बी टू बी सेल हो गई। हाँ, पर अगर वो टायर मैंने कस्टमर को डायरेक्टली बेच दी तो क्या? तो इसके वो जो है वो बी टू सी हो गया। अब सवाल क्या पूछा था कि इज दिस लॉजिक इक्वली गुड फॉर फॉर बी टू बी सेल्स? इट इज। क्यों? आप क्या कर रहे हैं, उसकी भी जरूरत है। मान लीजिए कि कार मैन्युफैक्चर मारुति गाड़ी के लिए वो मतलब किसी से पुर्जा खरीद रहा है, तो आपने मतलब जो है क्या करें, आप पूछेंगे हाँ उसकी नीड क्या है, भाई कौन सी गाड़ी में लगाओगे सर? वो गाड़ी मतलब जो है, इज इट एन एल्टो, या इज इट ब्रीजा, या इज इट बड़ी गाड़ी? हाँ, उसी हिसाब से तो आप टायर उसको डालोगे ना। अगर टायर बेच रहे हो, भाई ऑल्टो में तो छोटा टायर लगता है। ना उससे पूछूंगा ना, सर आपका बजट कितना है? हाँ, इंक्वायर तो करोगे ना। अब ये थोड़ी कि आपने मतलब उसको मतलब जो है 10,000 का टायर कह दिया, 4 टायर खरीद दिए, 4 मतलब ऑल्टो में दिए 10,000। अरे भैया बात क्या कर रहे हो, ऑल्टो की दाम ही मतलब जो है 2.5 लाख की गाड़ी है, उसमें मतलब जो है 4 टायर मैंने 10,000 के लगू। पूछोगे तो सही ना बजट क्या है। सो आस्किंग द नीड ऑफ द, फिर आप पूछोगे अच्छा आप क्या चाहते हैं कि इस गाड़ी में ये टायर कितने किलोमीटर चलना चाहिए, आप ये बताइए। ये गाड़ी की क्या स्पीड होगी? हाँ, आप पूछोगे ना, उसी हिसाब से टायर भी डिजाइन होता है ना। तो ये सब क्या कहते हैं, मैं जैसे आपको मतलब बी टू बी का एग्जांपल दे रहा हूं कि उसमें ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। बिकॉज जो भी चीज जिसपे वो आप कर रहा है ना, ही विल लुक एट मतलब जो है आपका, किसी ने क्या लिखा है, एन OEM मैन्युफैक्चरर विल स्पेशली लुक एट दोस सेट्स ऑफ बिजनेस which can consume its products. That's right. And of course product quality is very important, है ना? So हाँ, if I'm selling to a Mercedes Benz car, he's selling a car for 50 lakhs, so his expectation on the quality is that much more now. If I'm selling to a small auto car,
You know, the expectations of quality are there, but not so much as compared to a, very, very expensive car, which drives at high speed or whatever else, etc. It's got different safety standards. So therefore, every B2B person has requirements of quality, price, suitability, and unless you don't ask, you won't know, no? तो क्वेश्चन तो उसमें मतलब उसमें भी लागू है जितना आपके में उसमें लागू है। चाहे आप कस्टमर से मतलब उससे मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उसकी जरूरत के हिसाब से आप उसको समझ के उसको मतलब समझाएंगे ना। और उसी तरह से अगर B2B सेल कर रहे हो तो उसके मतलब हाँ ठीक है, उसके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। कस्टमर से वो गाड़ी बेच रहे हो तो क्या, ही माइट लुक एट कंफर्ट, ही माइट लुक एट सेफ्टी, पूछेगा कितने एयर बैग्स हैं, उसकी कंफर्ट देखेगा भैया, मतलब माइलेज देखेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट देखेगा। हाँ, a person who's manufacturing a car will look at something else. He look at quality, he look at durability, he look at the price. So parameters may change, but the fact is that what need to be understood if you want to sell the car. समझ गया ना? हाँ, क्यों भाई? मालेंगे? yes. यस मालेंगे। हाँ जी, हाँ मुस्कुरा रहे हो, हाँ भैया, समझ आई नहीं आई मेरी बात? ओके, गुड। ओके, सो दीज आर सम बेसिक टिप्स, पर सेल भी अलग अलग किस्म की होती है, वो भी समझ है ना, क्योंकि आप लोग मतलब सेल्स का सोच रहे हैं मेरे को इस लाइन में जाना चाहिए, नहीं भैया, जाना ये तो है, अगर आप सेल में आ रहे हैं जिंदगी बन जाएगी, समझ लो। हाँ, थोड़े से टिप्स आने चाहिए। हाँ, जो भी आप बेच रहे हो प्रोडक्ट की समझदारी मतलब उसको जरूरत है, या मतलब ऐसे थोड़ी कि मतलब हमने खड़े खड़े मतलब जो है चीज को बेच, तो इसमें क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की ऑप्शंस है आपको। देखिए, आप लोगों की सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है यार ऑनलाइन सेल्स, बड़े बड़े कामयाब चीज है। घर में बैठे बैठे आप ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। अब इतने बैंक्स हैं, उनको क्रेडिट कार्ड बेचना है, आप ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं, मतलब जो है बैठे बैठे है ना, कॉल सेंटर द्वारा आप बेच सकते हैं। यू कैन सेल इंश्योरेंस। सर्विस सेक्टर जो है वो सारा मतलब ऑनलाइन सेल्स पे मतलब जो है 80% ऑनलाइन सेल्स पे आप मतलब उससे मदद कर सकते हैं। You can sell, maybe somebody is looking for a holiday. You can sell a holiday plan on this thing online. तो ऑनलाइन सेल्स मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, ये आसान है। देखो, फील्ड में जाके सेल करना, एक तो धूप में घूमना पड़ेगा, काम काम मतलब पसीने छूटेंगे, एसी कमरे में बैठो। ऑनलाइन सेल्स का बहुत बड़ा मौका है। So online sales is a big opportunity for you. Whether it is to do with banks, whether it's to do with insurance, whether it is to sell, I don't know, even our people are selling, things like inquiry, even, it could be a line of clothing, it could be anything. No? So sales is the same. अब सेल्स में भी मतलब जो है एक आध मतलब मैं थोड़े से इसके टिप्स और दे दूं। भैया, जो आपसे सेल करवाता है वो आपसे चाहता क्या है? किसी कंपनी के लिए अगर आपको मतलब सेल्स की जॉब मिली, वो क्या चाहता है? तो एक तो होते बोलते हैं अपसेलिंग। अपसेलिंग क्या चीज होती है? हाँ, कि अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। कोई प्रोडक्ट होता है वो 500 रुपए का बिकता है, कोई 700 का होता है, कोई 1000 का होता है, 2000 का है। कंपनी क्या चाहती है कि नहीं भैया, कि आप सेल कर रहे हो तो ये 2000 रुपए वाला प्रोडक्ट भिजवा दो ना। पर हाँ, 2000 वाले प्रोडक्ट में क्या कुछ तो खासियत होगी ना, ऐसे ही थोड़ी उसने 2000 झाड़ ली। 500 रुपए में प्रोडक्ट क्या, सो देयर इज समथिंग नॉट फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। तो आपको क्या चाहिए, आप सबको क्या है ना, फीचर दे सर, हमारे मतलब जो है ये इसमें ये फीचर। फीचर क्या चीज होती है कि जी इसका इतना वेट है, ये इसकी इतनी प्राइस है, ये इसका इतना यू नो
क्या क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन है, ये सारे फीचर्स होते हैं। एडवांटेज क्या है, इसको आप यूज करोगे तो ये आपका फायदा हो जाएगा। बेनिफिट क्या होता है कि ये जी आप इसका मतलब जो है, इसका लाभ आपको, अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको इसका लाभ क्या हो। बेचना क्या चाहिए, फीचर नहीं बेचना चाहिए कि जी हमारे प्रोडक्ट में सर ये था, ये स्पेसिफिकेशन है, ये चीज है, ये मान लीजिए कि आप मतलब जो है कि चलो मैं उदाहरण देता हूँ कि कपड़ा बेचना चाहते, तो आप क्या कहें कि ये इसमें कपड़े में मतलब जो है ये पॉलिथीन का कपड़ा है, ये इसको धोने की मतलब जरूरत नहीं पड़ती जी, इसका मतलब जो है इतना इसमें काउंट है, और ये कपड़ा जो है मतलब ये इसका कलर फेड नहीं होगा जी, और ये मतलब ये ऐसा कपड़ा है, वैसा कपड़ा है, ये तो आप फीचर्स बता रहे हो ना। पर जो कपड़ा खरीदता कह रहे हैं कि जी इसकी जो कमीज जो आप पहनेंगे ना, अगर आप पहन के पार्टी में जाएंगे तो यार ये क्या आदमी आ गया, क्या बढ़िया कमीज पहनी हुई, कितना हैंडसम लग रहा है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग। तो आपने क्या कहा, डोंट सेल कि इस शर्ट में ये इसका रंग फेड नहीं करेगा, इसकी प्राइस ये, अरे भैया बाद में समझाइए, आप उसका एडवांटेज समझाइए या बेनिफिट समझाइए। सबसे तगड़ी चीज क्या है, बेनिफिट। तो आप जब चीज किसी को बेचते हो तो आपको क्या बताना है, डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द फीचर्स। फीचर्स तो आप बाद में एक्सप्लेन, ये कहेंगे जी ये बेनिफिट है, इस प्रोडक्ट को आपको ये लेंगे तो ये आपका फायदा है। सो if you want to succeed and you want somebody to buy a product, then you must show the benefit. but benefit क्या, अलग अलग आदमी के अलग अलग बेनिफिट है। जो आपको उसकी वैल्यू नजर आ रही है हो सकता है अगली को नहीं है, तो बेनिफिट तो तब बेचोगे ना जब उसकी नीड समझ लोगे। So to showcase the benefit, you first need to understand the need, and then you have to show कि जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो आपका प्रोडक्ट जो है उसमें क्या वैल्यू दे रहा है, ताकि वो बेनिफिट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर वहां तक आप पहुंच गए तो आपकी सेल जो है आराम से हो जाती है। देखिए ऐसा है, अगर आप सिखा देंगे कि क्या मेथड से कैसे आप प्रूविंग करते हैं, कैसे आपको उसको सेल करते, ठीक है। हाँ, बट कई दफा लोग कहते हैं जी बड़ी महंगी है जी, मैं नहीं लेता। अब चीज महंगी, क्योंकि हर एक क्या, ये लास्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा, हर एक के सिर में, हर एक आदमी के सिर में एक तराजू है। तराजू में क्या वो तोल रहा है, क्या दाम और क्या मिलेगा, वैल्यू क्या है, दाम और वैल्यू। अगर तो वैल्यू उसको नहीं, पर अगर आप तो फिर यार यार फिर तो सस्ता है। अब कई प्रोडक्ट्स में ये वैल्यू होता है पर सेल्समैन उसको बता नहीं पाता। हाँ, ओके, सो देयरफॉर यू नीड टू शोकेस द वैल्यू टू ओवरकम द प्राइस। जब कहता है महंगा ना, इसका मतलब क्या, महंगी नहीं है, आप उसकी वैल्यू बता नहीं पाते। अच्छा चलो, अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे मतलब रुकता हूं। आपके मन में कई सवाल आए होंगे, है ना, तो मैं आपसे, अब मैं आपके तरफ से सुनना चाहूंगा कि आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, ताकि फिर हम आपको उसका तोड़, आपको उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करें। हाँ जी, तो या तो आप मतलब इसमें चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या अगर आप मुझे वानी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, जो भी आपको ठीक लगे। हाँ जी, सो प्लीज गो अहेड। अब हाँ, हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, कौन कौन आप क्वेश्चन, कोई है किसी का? सर मेरे पास ही हाँ, कुछ चले हैं, निखिल कृपा हाँ बेटा, शंकर। हाँ सर आई वर्क इन ए मेडिकल शॉप हाँ एज ए सेल्समैन। हाँ तो कभी ऐसा होता है कि मेरी दुकान पे अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है, हाँ समझो किसी ने ऐसा बोला मुझे कि आप मुझे हार्लिक्स दे दो, हाँ
तो मैं एक्चुअली बेचता तो हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये केमिकल वाली चीज है, अगर आप नेचुरल चीज इसी पैसे का खाओ तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये कैसे, मतलब कैसे मैनेज करूं मैं? देखो, फिर आप उस दुकान में जाके काम कर लो जहां पे नेचुरल चीज बिक रही है। अगर आप अपने प्रोडक्ट में कन्विंस नहीं हो, आप बेच नहीं पाओगे, ये समझ लो। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मैं दिल से कह रहा हूं कि ये बेस्ट है। अगर आपके दिमाग में ये है कि ये प्रोडक्ट में खोट है, या इससे बेटर में इसमें केमिकल है, और ये मतलब मैं मतलब लोगों को मतलब कि उसकी मतलब जो है तबीयत खराब करने वाला है, भैया नौकरी छोड़ दे। उस जाके जहाँ पे काम कर, जहाँ पे आप। बट लेट मी टेल यू समथिंग, सी द फैक्ट इज, no doubt natural products also give you certain मतलब benefits. At the same time, sometimes देखो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के दवाइयों का अलग अलग किस्म का मतलब वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। there are some मतलब this thing which give you herbal मतलब cures, but which sometimes take a long time to cure. If that person needs an immediate solution and he goes on to that herbal, homeopathic cure, it might take him a long, long time. So you have to see what how you're benefiting him. But in the end, I'm only telling you one thing. You have to be thoroughly convinced of the product that you're selling. It is the best product, and you have to have full faith in that. If you do not have the faith, you will not be able to sell. Simple. क्यों जवाब मिला? ओके सर। Mukesh, can I just add one more thing? हाँ जी, प्लीज। A lot of people here, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने लिए नौकरी तलाश रहे हैं। At अच्छा, that time, जब आप नौकरी लेने जाते हैं, क्या आपको लगता है आप उस समय सेल कर रहे हैं, अपनी सेल कर रहे हैं? How many of you believe that? And I think that is, अच्छा सवाल, अच्छा yeah, सवाल। because हाँ, how many of you feel? Because of course Mukesh spoke about selling a product, selling online, but सबसे पहला सेल जो हम करते हैं before we join a new place to work is हम अपने आप को बेचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। क्या आप सब लोग ये चीज को बिलीव करते हैं? Yes. How many of you believe it? हम्म, We are the product of the company. Yeah. that is right, that is right. No, so I think that's a very very vital question that has been raised. So you have to first sell yourself. Huh? Huh? When you go for a job, what do you say? ये देखिए जी मेरी मतलब क्वालिफिकेशन है, ये देखिए मेरा तजुर्बा है। Huh? So what? This is my background. So what do? You're selling yourself. Huh? ये मेरी अचीवमेंट्स है, पिछली जॉब में मैं ये काम करता था, यहाँ आई वाज डिक्लेयर्ड एज द टॉप परफॉर्मर। बेच रहे हो ना। फिर एक मैं और टिप दे रहा हूं, अगर आपको नौकरी चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको ये बताना चाहिए कि आपका वो जो बैकग्राउंड है, वो आप उस कंपनी की कैसी मदद कर सकते हैं। अगर वो आपने टच कर लिया ना, तो फिर आपकी सेल कंप्लीट है। Because what did I say? Sales is helping the other. Why is he recruiting you? Because he has a need. Can you satisfy the need? वही तो वो जांच रहा है। तो आप वो गुण बताएंगे ना जो उसकी नीड में आप उसको मतलब सॉल्व करने की करते हैं। So you have to sell yourself. Okay? So that's the thing. But yes, so sales is not only product sales. First and foremost, you have to sell yourself. You're the brand. Absolutely. Huh? Okay. चलिए, हाँ जी, सेल्स इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही बोला भैया, मेरा जिंदगी भर का तजुर्बा यही कहता है। Hi sir, I am Abhi. I have just one question. हाँ तो बच्चे, सेल्स टारगेट मीट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी रहती है? बिकॉज इन फील्ड सेल्स कंपनी बेसिकली इसी चीज पे फोकस करती है कि आप हाँ सेल्स टारगेट मीट करो। और सैलरी का बाइफर्गेशन भी देखा जाए तो बाइफर्गेशन ऐसा रहता है कि आपको 7 लाख का फिक्स पैकेज मिलेगा और अराउंड 3 या 4 लाख इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स डिपेंड करता है सेल्स पे। अगर आप सेल्स टारगेट मीट कर पाओगे तभी हाँ, आपको जो इंसेंटिव मिलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल।
हाँ। कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी जो सेल्स टारगेट मीट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी? देखिए स्ट्रैटेजी, सो फर्स्टली लेट मी आस्क, इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? कि कंपनी क्या एडवांटेज ले रही है कि भैया टारगेट करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ बताइए। हाँ अभी हाँ भाई, यस सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब कंपनी कह हेलो। देता है, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कई कंपनी जो है ना वो टारगेट सेट कर देते हैं, तो टारगेट पे आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो ये अच्छी चीज है या कंपनी मतलब अच्छी चीज है सर, अननेसेसरी? क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होने में हेल्प होती है। बट बिल्कुल, और जस्ट कमाई भी बढ़ेगी यार। कमाई मतलब ज्यादा मतलब रिजल्ट, देखो पीपल आप बॉटम लाइन मतलब उसको चाहिए। बॉटम लाइन आपने डिलीवर करी, जितना आपने ज्यादा करा उतना आपको फायदा है। अब सवाल ये है कि टारगेट पूरा कैसे करें, यस सर, बिकॉज फ्रेशर्स है ना? मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है लिग्रो कंपनी में हाँ एज अ कैंपस मैनेजमेंट ट्रेनी, बट हाँ ठीक है, मेरा मुझे कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स का। कोई बात एज नहीं। अ अभी एमबीए हाँ, कंप्लीट हुआ है तो तुरंत ही ज्वाइनिंग है जून में। तो सही कंपनी है। क्या करती है, बेसिकली ज्वाइन करने के बाद ही आपको एरिया देने के बाद सेल्स टारगेट आपका सेट कर देती है हाँ कि 6 महीने में प्रोबेशन पीरियड में आपको इतना इतना सेल्स करना है। हाँ ठीक है। प्रोबेशन पूरा अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट मेरी कंफर्म करनी है तो मुझे उतना सेल्स टारगेट तो पहले ही पीरियड में तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हाँ तो हाँ उसके अकॉर्डिंगली मतलब कैसी चीजें रहेगी जो सेल्स टारगेट मीट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। और मेरा सेल्स पूरा तो फील्ड फील्ड सेल्स ही है, तो हाँ, कुछ भी करके टारगेट मीट तो करके ही देना पड़ेगा कंपनी को नहीं अगर सही मुझे है। मेरी एम्प्लॉयमेंट हाँ ऑनगोइंग करनी है। हाँ, आपको क्या प्रोडक्ट क्या बेचते हैं? सर लिग्रो कंपनी का वो इलेक्ट्रिकल स्विच मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। ओके, तो आप मतलब इलेक्ट्रिकल डीलर्स वगैरह को बेचते हैं, किसको करते यस यस, रिटेल सेल्स में हैं? रिटेल। मुझे दिया है। ओके, देखिए ऐसा है कि यू नो हाउ डू यू अचीव योर टारगेट्स? You need to plan very meticulously. Firstly, I must know, कि what is my, लोग क्या कहते हैं, they look at their target towards the end of the month. जब तक क्या है, काफी पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है. So what you need to do is first you break up your target into a weekly basis. Then you have to see, okay, now if I have to achieve this target, where will I sell? देखो, अगर आप मतलब आपके पास कोई डीलर नेटवर्क है, तो आपके पास क्या, आपको ये देखना पड़ेगा, अगर वो डीलर नेटवर्क अगर एग्जिस्टिंग टेरिटरी है, तो आपको पहले अंदाज लगाना पड़ेगा कि भैया आपका माल कौन से आउटलेट पे ज्यादा बिकेगा. दे आर ए क्लास डीलर्स, बी क्लास डीलर्स, सी क्लास डीलर्स. बड़ा डीलर है वो आपको मतलब जो है अच्छी खासी सेल दे सकता है, पर दिक्कत क्या है, हो सकता है उधारी मांग ले, डिस्काउंट मांग ले. फिर मीडियम मतलब जो है बी ग्रेड की दुकानें हैं, वो आपको मतलब अलग से है. सी ग्रेड की दुकानें हैं, उसकी मतलब छोटी छोटी सेल आएगी, पर उसको मतलब हो सकता है कि इट इज इजी. Ways that you need to there. Okay, now if I go to a retail outlet, let's say I'm selling electrical switches. Okay, one is I go and tell him कि भाई सर खरीद लो सर, ये प्राइस ये डिस्काउंट. क्या वो दुकानदार ले लेगा? ठीक है, अगर प्राइस तुम्हारी ठीक है, थोड़ी बहुत ले लेगा. अगर आप उसी दुकानदार की थोड़ी सी सेल करने में बढ़ा दो, कैसे कि जो सब जो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह हैं, इनके लिए मतलब सुबह मैंने नुक्कड़ पे चाय को उनको बुला के आपको उसको मतलब जो है ना कहा कि भैया ये मदद करो, चाय समोसा उनसे बैठ के खाओ, कि क्या आपको मतलब जो है ना फलाने फलाने मतलब दुकान से अगर आप खरीदोगे तो, हाँ क्या आप मतलब जो है आपको कुछ मतलब हो सकता है टिफिन बॉक्स मिल जाए या जो भी है, क्या मिलता है. आप क्या, डोंट लुक एट, एक तो होती है जो प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल क्या है, दुकान में एक दफा आपने दे दी, पर आपको हर महीने टारगेट पूरा करना पड़ता है ना. अगर उसकी दुकान में माल अटका रह गया, कि आगे सेल बढ़ जाएगी? नहीं होगी ना. तो आपको क्या कहते हैं कि टर्शरी सेल करानी. टर्शरी सेल क्या,
उसकी दुकान में माल दिया, वो कोई खरीदने आना चाहिए ना उसको। फिर हर दुकान में क्या होता है, एक तो है मालिक, दूसरा क्या, उसके नीचे होता है एक सेल्समैन। तो आपको क्या, उसको पटाओ, सेल्समैन को पटाओ, और भैया तो थोड़ा इस पे हाथ रखा करना। तीसरी चीज क्या है कि आपकी डिस्प्ले। फोर्थ लास्टली क्या है सर, गारंटी। अगर आपका मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो मैं खड़ा हूं ना सर। So you have to therefore plan, you have to see from which outlet how much you're going to get. You have to therefore then go and help that, that outlet to sell by arranging for, small project people, contractors, bijli wala, to kind this thing. Loyalty cards, matlab coupon hote hain, usko matlab log hain. Then you have to kind of also, get the counter boy to support you. Counter boy क्या, भैया तुमने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, वो सोचता है यार अरे देख यार कितने अच्छा आदमी है। उसको यही पूछो, अब भैया तू कहाँ के रहने वाला है, तेरे बच्चे कितने हैं। थोड़ा 5 मिनट उससे, रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिलेशनशिप में आओ, चाहे वो दुकानदार हो, उसका जन्मदिन है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपको पता होना चाहिए उसका शौक क्या है, कि ये क्रिकेट का शौकीन है, इसको खाने का शौकीन है। अरे सर क्या रात को देखा, क्या मैच था आईपीएल का, आपने देखा सर, अरे क्या बॉल डाली थी सर, अरे क्या छक्का मारा था उसने। वो इंटरेस्ट हो जाता है ना। पर आपको पता होना कि उसका क्रिकेट का शौक है। अगर क्रिकेट का शौक है, क्या क्या बकवास कर रहा है तू। So you have to build relationships also with the retailers. You have to support them also. ये सब करो और प्लानिंग से चलो। टारगेट हुआ यार, क्यों नहीं टारगेट, पर टारगेट करने के लिए क्या, रिमेंबर टारगेट इज नॉट नेगोशिएबल। अगर आपने टारगेट लिया, उसका 100% मतलब पत्थर पे लिखी हुई बात है, और ये तुम्हारे ऊपर चैलेंज है कि मैं टारगेट करूंगा करूंगा करूंगा। इतना आपका इरादा होना चाहिए अभी, नहीं तो आप मतलब चूक जाओगे। इरादा इज द बिगेस्ट थिंग। तो थोड़ा इरादा पक्का करो, थोड़ा सा मतलब प्लानिंग करके चलो, थोड़ा सा रिलेशनशिप करो, दुकानदार की मदद करो, ताकि जो भी आपने उसको संभाल दिया वो सामान उसका निकल गया है, टारगेट हो जाएगा, चिंता मत कर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलो। I think the most important thing, Mukesh, that you just mentioned is people do not plan. And that's why by the end of the month वो बहुत overwhelm हो जाते हैं, अरे टारगेट नहीं हुआ। अगर प्लानिंग करी जाए, उसको वीकली ब्रेक किया जाए और उसके अगेंस्ट में एक्टिविटीज उस हिसाब से की जाए, there is no reason why it can't be done. That's right. Yeah. Anyone else? Any other questions? And thank you so much अभी कि आपने वो सवाल पूछा। I'm sure बाकी लोगों को भी उससे बेनिफिट हुआ होगा। और Anyone else? टारगेट का मतलब इंसेंटिव का डरना नहीं चाहिए, मौका है, मौका। इंसेंटिव है तो अच्छा है। यस सर, इसीलिए फील्ड सेल्स लिया, क्योंकि ऑफिस बहुत जॉब भी बढ़िया, मतलब सही जगह फिजिकली बैठे हुए, हैंडिकैप सही लोगों को जगह हो। ऑफिस जॉब भी दे रहे थे, मैंने फील्ड बिल्कुल सेल्स बिल्कुल, इसीलिए लिया। सही जगह बैठे हो तुम। यस और कोई किसी अलग तरीके के सेल्स में कोई है तो कोई और चैलेंज फील होता है, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। जी पूछो पूछो। जैसे मुझे लगता है कई बारी जो एचआर टीम्स होती हैं, मुझे लगता है इवन एचआर टीम्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज दे हैव टू सेल अ पोजीशन टू अ कैंडिडेट। जहां कैंडिडेट अपने आप को बेच रहा है कंपनी के लिए, अपना एक ब्रांड पोजिशनिंग कर रहा है, HR also is trying to convince the best candidate to join the company. So somewhere they also need to understand that it is important to position and therefore sell to the right candidate. That is all well said, but it's a different line. Different Choosing sales, listen, let's not mince the words. वैसे तो सेल्स हर एक चीज के लिए चाहिए जिंदगी में, मतलब चाहिए। बच्चा रोता है वो भी मतलब जो है वो मतलब वो किसी चीज मांग रहा है अपनी माँ से, Correct, correct. वो सेल कर रहा है, तो that's not it, that's too generic. That is there, of course, but the fact is that, listen, there is some serious product Which or is service hardcore. selling. So there is a question here, Mukesh. Sonia is asking,
How to do you turn- turn objections to opportunities? ऑब्जेक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझो। एक तो है, दो किस्म की ऑब्जेक्शन है। एक ऑब्जेक्शन होती है कि उसको, अगले को तुम्हारी चीज समझ नहीं आई, कि जो आप एक्सप्लेन करने की है, तो इसलिए उसने ऑब्जेक्शन कर। तो पहले तो आप उसको, मतलब जो, अगर क्लैरिफाई करो, अगर उसकी ऑब्जेक्शन उसकी वजह से है तो आप उसको क्लैरिफाई करिए। दूसरी सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन जो आती है, ये आती है ऑब्जेक्शन जिसको मैंने कहा कि प्राइस ऑब्जेक्शन। तो ठीक है, दाम बड़ा महंगा है, चीज तो ठीक है जी, दाम बड़े महंगे। इस ऑब्जेक्शन को कैसे काउंटर करना है? इसका मतलब है उसको क्या, वैल्यू नहीं समझ रही, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझ रही। अब वैल्यू क्या है? उसके नीड के हिसाब से। तो हो सकता है कि आपने उसकी नीड पूरी तरह से नहीं समझ रही, एंड क्योंकि आपने नीड नहीं समझ आई, इसलिए जो आपका जो जो बेनिफिट है, जो वैल्यू उसको बनता है, बेनिफिट इज व्हाट, अ वैल्यू proposition to that person. So that is, he has not been able to understand that. Then you have to again try and understand कि जी आपको हो सकता है कि आपको इसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही, या मैं समझाने में मेरे को मतलब है। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी जरूरत क्या थी, ये थी जरूरत, क्या मैं सही? नहीं नहीं यार, ये जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए फिर आपकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत समझो। और जरूरत समझने के बाद में फिर अपने प्रोडक्ट को देखो कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए, उसकी जरूरत सॉल्व करने में कैसे मदद कर रहा है। अगर वो समझ आ गई तो उसका ऑब्जेक्शन आपने किल हो जाएगा। ओके, सो if he's not understood, clarified, if he thinks there's a price objection, then that means you have not been able to showcase the value proposition. अगर value proposition आपने ठीक से कर ली भैया, हाँ, वही चीज मतलब जो है उसको समझ आ जाएगी, और ऑब्जेक्शन उसका आपने हैंडल हो जाएगा। Okay. Lovely. Thank you so much, Mukesh, for giving us your very valuable time. And as I can understand from people who are here, they have truly taken value out of this. They will be able to become better salespeople. हाँ, सेल्स की लाइन ज्वाइन करिएगा। So thank you so much, and we will come back to Yes. you and see Okay. how we can actually try and build something more cohesive. But thank you so much for your time, and thank you Yes. everybody जिन्होंने यहाँ join किया. I hope this session was actually helpful for everyone. And a round of, unmute yourself and let's do a round of applause to everyone. चलो पहले सब लोग Absolutely. अनम्यूट करिए और मैं जोर से ताली आपकी सुननी चाहती हूँ। Okay, go for it, man. हाँ जी, Cool. okay. Thank you so much, Mukesh. Thank you everyone for joining in. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.